MGGS Departmental Schemes Part 3. This is an objective question answer series with full explanation for concept clearance. Let's see question number 1. When was SAMHSA 2.0 launched? Option A 24 May 2018, 4 August 2021, 1st April 2018, 1st April 2021. Correct option is option B 4th August 2020. If you see option A, then 24 May 2018, SAMHSA 1.0 was launched by then HRD Minister. Question number 2. NMCMS National Means Cum Merit Scholarship Scheme 2008. Examination is conducted while studying in class 8th and a scholarship of rupees 12,000 for class 9, 10, 11, 12 is given. यानी कि बच्चा जब क्लास 8 में पढ़ रहा होता है तब वो NMCS एग्जामिनेशन में अपीयर होता है और उसमें सफल होने पर उसको 9, 10, 11, 12 के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है. What is the minimum percentage requirement in class 10th for continuation of scholarship for class 11th and 12th? लेकिन जो 8th में एग्ज़ाम होता है और उसमें सफल होने पर बच्चे को 9, 10 के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन उसको 11, 12 में स्कॉलरशिप की कंटिन्यूएशन के लिए उसको क्लास 10th के जो बोर्ड होते हैं उसमें उसको मिनिमम कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आने हैं ताकि उसकी स्कॉलरशिप क्लास 11 और 12 के लिए कंटिन्यू रहे. तो क्वेश्चन ये है कि क्लास 10th में व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट. ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 40%. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 60%. और ये 60% जो है दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 5% रिलैक्सेशन इज देयर फॉर reserved categories like SC, ST, OBC and BPL. Then for them it is 55%. Reserved categories SC, ST, OBC and BPL. You can say minority. Question number 3. Which statement is wrong about the central sponsored educational schemes? कि जो सेंटर के द्वारा चलाई जा रही एजुकेशनल स्कीम्स है उसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन ए PM यानी प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 31 May 2021. स्टार्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स. यू शुड रिमेंबर दिस एब्रीविएशन, सो यू शुड नो व्हाट इज स्टार्स मीन्स. स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स 16 October 2020. निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी वाज लॉन्च्ड ऑन 5th July 2021. ऑप्शन डी PM पोषण न्यू नेम फॉर मिड डे मील यानी मिड डे मील का नया नाम है स्कीम का और इट वाज लॉन्च्ड ऑन 29 September 2021. सो हमें देखना था कि इन स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है. ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशन के हिसाब से भी और इनकी लॉन्च डेट के हिसाब से भी. तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए PM यानी प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 31st May 2020 नॉट ऑन 2021. क्वेश्चन नंबर 4. What is the full form of Inspire Manak MANAK Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge award started by central government in 2009-10. So let's see the full form of Inspire. Option A Initiative in Science Purpose for Inspired Research. Innovation in Science Pursuit for inspired research. Innovation in science pursuit for interactive research. Innovation in science pursuit for introductory research. Correct option is option B innovation in science pursuit for inspired research. Question number 5.
What is the age criteria and award money for Inspire Award 2009-10? कि जो इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए बच्चों के अपीयर होने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है और अवार्ड मनी क्या है. लेट्स सी द ऑप्शंस. 10 to 16 years should be the age of the students and 10,000 rupees per student is the award. Let's see option B. 10 to 15 years age and 10,000 rupees per student award. 10 to 15 years age and 15,000 rupees per student award. 10 to 20 years age and 20,000 rupees per student award. The correct option is option B. 10 to 15 years age and 10,000 per student award money is given for the selected candidates or students of Inspire Award. Question number 6. Which statement is wrong about NTSC examination? Means National Talent Search Examination conducted by NCERT in 2 phases. कि इसके NTSC एग्ज़ाम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. इसके 2 फेजेज़ होते हैं. उसमें फर्स्ट फेज़ जो होता है वो स्टेट यानी RBSE लेती है अपने राजस्थान में, और जो सेकंड फेज़ का एग्जामिनेशन होता है वो NCERT खुद कंडक्ट करवाती है. तो ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स शुड हैव पास्ड क्लास 9th विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर SC, ST, OBC एंड PWD. स्टेटमेंट बी, स्टूडेंट्स शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच पेपर. जो NTSC के पेपर होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें मतलब स्टूडेंट को प्रत्येक पेपर में 40% मार्क्स स्कोर करने हैं फॉर जनरल कैटेगरी एंड 32% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज इन ईच पेपर. रिजर्व्ड कैटेगरीज में जैसे आपको पता है उसमें कैटेगरी आती है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी या PWD या PWD, ये कैटेगरीज आती है. ऑप्शन सी, स्कॉलरशिप फॉर क्लास 9-10 इज ₹1250 पर मंथ एंड दोज हु स्कोर 60% मार्क्स इन क्लास 11th एंड 12th. फॉर UG एंड PG स्टूडेंट्स इट इज 2000 पर मंथ. ऑप्शन डी, NTSC वाज स्टार्टेड इन 2013. सो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, स्टूडेंट should have passed class 9th with 60% marks for general and 50% marks for SC, ST, OBC and PWD. ये 50% marks नहीं है, 55% marks because they are given 5% relaxation. So for reserved categories, students should have passed class 9th examination with 55% marks. So option A is wrong. All other options are correct about NTSC examination. Question number 7. Which statement is not correct? Not correct means wrong about RBSE, STSC. RBSE भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, STSC यानी स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट यानी रॉन्ग है. ऑप्शन ए, कंडक्टेड ईयरली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 12th, दोज हु हैव पास्ड द प्रीवियस क्लास विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स. तो जैसा कि हमने देखा था NTSC के लिए प्रीवियस क्लास यानी 10 क्लास में एग्ज़ाम होता है और 9th क्लास में कितना होना चाहिए स्कोर 60%, लेकिन STSC में 50% होना चाहिए 9th का या आपका 11th का स्कोर टू अपीयर इन द RBSE STSC एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन STSC अबव 90% मार्क्स विल गेट अ स्कॉलर सर्टिफिकेट. यानी जो बच्चे STSC एग्जामिनेशन में 90% प्लस मार्क्स से पास होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट एक स्कॉलर सर्टिफिकेट देती है. एंड फ्रॉम 80 to 90%, और जिनके STSC एग्जामिनेशन में 80 to 90% मार्क्स आते हैं दे विल गेट अ डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट. यानी 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं. जिन बच्चों के 90% से ऊपर है उनको स्कॉलर सर्टिफिकेट और जिनके 80 से 90 के बीच में है उनको डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट. 50-50 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th, 12th each, those who score above 80% marks will get
a scholarship of rupees 1250 per month for class 11-12 and 21 यानी 2100 रुपीज़ पर मंथ फॉर यूजी एंड पीजी। ऑप्शन डी, आउट ऑफ 20 टॉपर स्टूडेंट्स कि जो STSC एग्ज़ाम में 20 प्रथम स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ STSC एग्जामिनेशन, फर्स्ट वन विल गेट रुपीज़ 4000 वन टाइम ग्रांट। जो प्रथम आएगा उसको फर्स्ट स्टूडेंट को क्या दिया जाएगा, 4000 का वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा, यानी एक बार उसको एक मुश्त 4000 रुपये दिए जाएंगे। एंड 19 others will get rupees 2000 as a one time grant out of 20 टॉपर स्टूडेंट्स। और जो 19 और बच्चे हैं उनको 2000 रुपये वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा। ST एग्जामिनेशन, दोज हु आर फ्रॉम स्कूल्स कंसर्न विद RBSC एंड स्कूल एजुकेशन काउंसिल ऑफ राजस्थान, फर्स्ट वन विल गेट। तो ये तो सब कैटेगरी में आ गए कि स्टूडेंट्स जो पहले 20 स्टूडेंट्स है उसमें आपके CBSC प्राइवेट स्कूल्स सारे बच्चे आ गए। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन जो है अपना जयपुर में, उसके अंडर में जैसे स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स आते हैं, उनके बच्चों के लिए स्पेशल जो 20 बच्चे प्रथम आते हैं, फर्स्ट वन विल गेट 4000, उसमें पहले बच्चे को 4000 रुपये एंड वन टाइम ग्रांट, एंड 19 अदर्स विल गेट 2000 वन टाइम ग्रांट। और जो 19 बच्चे हैं उसको 2000 रुपये वन टाइम ग्रांट मिलेगी। तो ये सारे ऑप्शंस STSC के बारे में हमने पढ़े, इसमें हमें गलत देखना है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन C। उसमें गलत क्या है, 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10th एंड 12th ईच दो जो स्कोर अबव 80% मार्क्स विल गेट स्कॉलरशिप ऑफ 1250 पर मंथ फॉर क्लास 11-12 की जो STSC एग्जामिनेशन में 10 और 12 में जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से जिन्होंने 80% से ऊपर स्कोर किया है वो क्या, उनको क्या मिलेगी 1250 रुपीज़ यानी 1250 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी व्हेन दे कंटिन्यू देयर स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th। तो 1250 रुपये पर ईयर मिलेंगे। और रुपीज़ 2100 PM फॉर UG एंड PG यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उनको 2100 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ये गलत है। नॉट 2100 रुपीज़, इट इज़ 2000 रुपीज़ ओनली। So if you correct this thing, then all 4 options will be correct and your STSC examination topic will be clear. And then let's move to question number 8. How many schools in total, यानी total कितनी schools and for first phase have been selected। एक तो total और बाद में first phase में कितनी selected की गई है for राजस्थान अंडर PM श्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, यानी PM श्री स्कीम जो है सेंटर की एक स्कीम है, ये केंद्र की, उसके अंतर्गत राजस्थान में कितने टोटल स्कूल्स सेलेक्ट किए गए हैं जिनको कि PM श्री स्कूल में बदलना है, और जो फर्स्ट फेज़ में है कितने स्कूल्स पर काम शुरू हो गए ये हमें बताना है। तो टोटल स्कूल और फर्स्ट फेज़ में कितने स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं। तो ऑप्शन A 816 402, क्या टोटल स्कूल 620 है और जो फर्स्ट फेज़ वाली 320 है। 716 402, 3737 है या फिर 134 है। तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। 716 कि राजस्थान से PM श्री स्कीम के अंतर्गत 716 स्कूल्स हैज़ टू बी डेवलप्ड एज PM श्री स्कूल्स, और फर्स्ट फेज़ में 402 स्कूल्स है वो सिलेक्टेड किए गए हैं, किसमें, फर्स्ट फेज़ में। अब अगर आप अदर ऑप्शंस देखें तो एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, जैसे 1337 और 134। तो इसमें आपको याद रखना है कि राजस्थान में अभी MGGS जो स्कूल्स हैं वो 3737 है टोटल, और 134 स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स राजस्थान में भी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टारगेट एज ग्रुप एंड ग्रेड फोकस्ड अंडर निपुण, कि निपुण के अंतर्गत जो बच्चों का एक टारगेट एज की किस एज तक हमें उनका ख्याल रखना है और उनका ग्रेड कितना है। नेशनल निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ए नेशनल मिशन ऑन FLN। और जो निपुण है वो नेशनल मिशन है FLN पर। FLN मीन्स फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, की बच्चों को है मूलभूत जो साक्षरता और उनको जो गणितीय ज्ञान है वो होना चाहिए। तो ये मूलभूत साक्षरता और गणितीय ज्ञान किस
एज ग्रुप के बच्चों को और किस ग्रेड तक हमें प्राप्त करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए 3 to 9 ईयर्स, तो एज ग्रुप होना चाहिए बच्चों का और ग्रेड होना चाहिए 3। तो अप टू ग्रेड 3 या 9 ईयर्स तक हमें FLN उनको प्राप्त बच्चों को प्रदान कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी 6 to 14 ईयर्स एज और ग्रेड 8। ऑप्शन 3 to 18 ईयर्स एज एंड ग्रेड उनका होना चाहिए अप टू 12। 6 to 16 ईयर्स एज और ग्रेड होना चाहिए अप टू 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए 3 to 9 ईयर्स बच्चों की एज होनी चाहिए और ग्रेड होना चाहिए 3, यानी 3 ग्रेड तक हमें बच्चों को मूलभूत लिटरेसी यानी साक्षरता और गणितीय ज्ञान प्रदान कर देना चाहिए। अब हम अदर ऑप्शंस देखते हैं, जैसे 6 to 14 ईयर्स अप टू ग्रेड 8। ये हमारा जो SSA है यानी सर्व शिक्षा अभियान तो 2001-2 में लागू हुआ था, वो ये कवर करता है 6 to 14 ईयर्स एंड ग्रेड 8। एक दूसरा RTE के अंतर्गत भी 6 से 14 साल के बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करने का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद में जो MDM है, मिड डे मील स्कीम, जिसको अभी प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया है, उसके अंतर्गत भी 6 से 14 और क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को ही फ्री स्कूल में भोजन कराया जाता है। और उसके बाद में जो चीफ मिनिस्टर की फ्री यूनिफॉर्म स्कीम है दैट इज़ आल्सो फॉर ग्रेड 1 to 8। तो ऐसे आप थोड़ा सा इनको याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द टारगेट ईयर अंडर निपुण, कि निपुण के अंतर्गत जो टारगेट ईयर है कि कब तक हमें ये चीज़ें प्राप्त कर लेनी है। टू अटेन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर चिल्ड्रन अप टू ग्रेड 3, की जो हमने अभी पीछे बार की थी कि मूलभूत साक्षरता और न्यूमरेसी यानी गणितीय ज्ञान बच्चों को प्रदान कर देना है। तो किस वर्ष तक हमें निपुण के अंतर्गत FLN को प्राप्त कर लेना है, तो 2026-27, ऑप्शन बी 2025-26, 2024-25, 2027-28। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कि जो निपुण के अंतर्गत जो FLN प्रोग्राम है उसके तहत हमें बच्चों को मूलभूत साक्षरता और गणितीय ज्ञान है वो 2026-27 तक ग्रेड 3 तक के बच्चों को प्रदान कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द फंड शेयरिंग रेशियो अमंग सेंटर, स्टेट एंड वर्ल्ड बैंक फॉर स्टार्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स लॉन्च किया गया था 16 अक्टूबर 2020 को, द लॉन्च व्हीकल ऑफ NEP 2020। और इस स्टार्स को लॉन्च व्हीकल ऑफ NEP भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो स्टार्स प्रोग्राम है इसकी फंडिंग करते हैं कौन कौन, एक तो सेंटर यानी केंद्र, दूसरा अपना स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आते हैं वर्ल्ड बैंक। तो उनमें किस रेशियो में वो पैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो क्या उनका रेशियो 50-25-25 है, क्या उनका रेशियो 53-32-15 है, क्या उनका रेशियो 45-30-25 है, या फिर 40-30-30 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कि जो सेंटर जो लगाता है उसका पैसा है 53 और 32 रेशियो में पैसा लगता है स्टेट का, और वर्ल्ड बैंक है वो 15 रेशियो यानी 15% पैसा किसका आता है, वर्ल्ड बैंक का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन स्टार्स स्कीम, तो 15%, या स्टार्स स्कीम इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये आपको यूनिसेफ या कोई अदर ऑप्शन आ जाता है तो यू हैव टू सिलेक्ट वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन वाज द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम यानी MDM चेंज्ड टू PM पोषण स्कीम, कि मिड डे मील स्कीम का जो नाम है PM पोषण स्कीम कब कर दिया गया। ऑप्शन ए 5 सितंबर 2022, ऑप्शन बी 5 जुलाई 2021, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 2020, ऑप्शन डी 29 सितंबर 2021। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी मिड डे मील स्कूल का जो नाम परिवर्तन किया गया PM पोषण वो 29 सितंबर 2021 को किया गया। अब अगर आप अदर ऑप्शंस देखें कि उस दिन कौन सी योजनाएं शुरू हुई है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अपना ऑप्शन ए है 5 सितंबर 2022, इस दिन PM श्री, जो हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है
PM श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके अंतर्गत 14,500 स्कूल पूरे इंडिया में सिलेक्ट किए गए हैं। उसमें राजस्थान में फर्स्ट फेज़ में हमने देखा था कि 716 स्कूल टोटल कितने 716 स्कूल, और फर्स्ट फेज़ में राजस्थान में कितने स्कूल आई है 402। ऐसे आपको याद रखना है। और 16 अक्टूबर 2020 को जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसको हम बोलते हैं लॉन्च व्हीकल फॉर NEP 2020 यानी स्टार्स STARS प्रोग्राम। और 5 जुलाई 2021 को जो प्रोग्राम शुरू हुआ है उसका नाम है निपुण, जिसके अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे FLN, यानी 3 कक्षा तक के या 9 वर्ष तक के बच्चों को 2026 से 27 तक हमें FLN यानी फंडामेंटल साक्षरता और उनको गणितीय ज्ञान प्रदान करना है। और क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द पीरियड कंसर्न्ड विथ समसा 2.0, यानी समसा 2.0 है उसमें किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक का जो टारगेट है वो टारगेट ईयर या पीरियड सेट किया गया है। तो 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2022 to 31st March 2027. So correct option is option A, 1 April 2021 to 31st March 2026। क्योंकि समसा जो 2.0 है वो लॉन्च हुआ है 4 अगस्त 21 को, और उसका जो पीरियड शुरू होता है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्टार 21, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ स्टार जो कि लॉन्च हुआ है 21 जन 2021 एंड एन एजुकेशनल प्रोग्राम, कि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है कौन स्टार, और ये लॉन्च हुआ है 21 जनवरी 2021 को। तो उसका फुल फॉर्म हमें बताना है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, क्या ये इसकी फुल फॉर्म है? क्या सेट टू असेस रिजल्ट्स इसकी फुल फॉर्म है स्टार की? क्या सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट इस स्टार की फुल फॉर्म है, या फिर स्टेट टू ऑगमेंट रिजल्ट इसकी फुल फॉर्म है? सो गिव द ऑप्शंस आर देयर, चूज वन ऑप्शन एज फुल फॉर्म ऑफ स्टार प्रोग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच एजेंसी प्रिपेयर्ड स्टार, कि स्टार जो प्रोग्राम है सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट, जैसा हमने ऊपर देखा है सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट। सो विच एजेंसी, किस एजेंसी ने इसको प्रिपेयर किया है? ए रिमीडियल एजुकेशनल प्रोग्राम इन राजस्थान, कि ये राजस्थान में एक रिमीडियल एजुकेशन प्रोग्राम है यानी उपचारात्मक शैक्षणिक प्रोग्राम है। RCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर। ऑप्शन बी राजस्थान स्कूल एजुकेशन काउंसिल जयपुर, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन बीकानेर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या ये है यानी RBSE? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए RSCERT उदयपुर, यानी राजस्थान इस स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो उदयपुर में, उसने स्टार प्रोग्राम को सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट प्रोग्राम को क्या किया है, बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द सूर्य नमस्कार ऑन सूर्य सप्तमी, ये लेटेस्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, सो यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन। ऑर्गेनाइज्ड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान टू क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जो सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में, वो कब किया गया? ऑप्शन ए 15 फरवरी 2024, 7 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2023, 24 जनवरी 2023। तो करेक्ट ऑप्शन इज 15 फरवरी 2024, और उस दिन थी सूर्य सप्तमी। उस दिन ये प्रोग्राम क्या किया गया था सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम। और सूर्य नमस्कार में क्या है, 12 कितने होते हैं, 12 स्टेज होते हैं, 12 स्टेज। अब हम अदर ऑप्शंस देते हैं, जैसे 7 अगस्त
ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और 24 जनवरी 2023 को क्या है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, यानी राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को है। और 11 अक्टूबर को वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। व्हेन डिड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ऑफिशियली लॉन्च ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आधिकारिक रूप से ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया, जिसका नाम है हरियालो, HARIYALO, हरियालो राजस्थान, ऑन द ओकेजन ऑफ 75th स्टेट लेवल फॉरेस्ट फेस्टिवल इन गारोटा। क्या नाम है, गाड़ोदा या गाड़ोता विलेज दूदू, जो कि चीफ मिनिस्टर का खुद का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से वो चुन के हैं, बाय प्लांटिंग पीपल ट्री। कौन सा ट्री लगाया उन्होंने, पीपल का एक ट्री लगाया। तो यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने आधिकारिक रूप से हरियालो राजस्थान जो ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण महाअभियान है उसको 75वीं राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर कब लॉन्च किया, डेट बतानी है हमें। तो क्या वो 15 फरवरी 2024 थी, क्या वो 7 अगस्त 2024 थी, क्या वो 22 जुलाई 2024 थी, या फिर 29 जुलाई 2024 थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 7 अगस्त 2024। और 15 फरवरी 2024 के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि इस दिन सूर्य नमस्कार प्रोग्राम क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया, सूर्य नमस्कार, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज समर कैंप organized in schools of Rajasthan on the occasion of World Environment Day 2021, जो कि मनाया जाता है कब, 21 जून को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उसके अवसर पर राजस्थान के स्कूल्स में समर कैंप आयोजित कब किया गया। ऑप्शंस है 1 जून 2024 टू 7 जून 2024, 1 जुलाई 2024 टू 7 जुलाई 2024, 22 जुलाई 2024 टू 28 जुलाई 2024 और 14 जुलाई 2024 टू 20 जुलाई 2024। करेक्ट ऑप्शन इज 1 जुलाई 2024 टू 7 जुलाई 2024 एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर्स सेशन 2024-25। तो 1 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 जब स्कूलें खुली तो उस समय ये प्रोग्राम सबसे पहले जो ग्रीष्मकालीन कैंप है वो आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज़ नो बैग डे ऑब्जर्व इन स्कूल्स ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान के स्कूल्स में नो बैग डे को कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस है ऑन एवरी ट्यूसडे, ऑन 2nd and 4th ट्यूसडे ऑफ अ मंथ, ऑन 1st and 3rd सैटरडे ऑफ अ मंथ, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑन 2nd and 4th सैटरडे ऑफ अ मंथ, यानी दूसरे और चौथे शनिवार को ये नो बैग डे मनाया जाता है। और इन्हीं के साथ ही इस 4th सैटरडे को गार्गी मंच और राजू मीना मंच के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज शक्ति दिवस सेलिब्रेटेड अंडर एनीमिया फ्री राजस्थान इन स्कूल्स, कि राजस्थान के जो स्कूल्स है उसमें शक्ति दिवस एनीमिया मुक्त राजस्थान के रूप में कब मनाया जाता है। ओके, बाय गिविंग IFA यानी आयरन एंड फोलिक एसिड पिंक पिल्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5, कि आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है ताकि बच्चों में रुधिर की या रक्त की कमी ना हो। उसके लिए 1 से 5 तक के बच्चों को पिंक पिल्स यानी गुलाबी गोलियां दी जाती है, एंड ब्लू आयरन एंड फोलिक एसिड पिल्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12, और जो नीली गोलियां हैं वो दी जाती है क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को। तो क्या वो एवरी ट्यूसडे हैं, या ऑप्शन बी 1st and 3rd मंडे है, 2nd and 4th ट्यूसडे है, या 2nd and 4th सैटरडे है। तो करेक्ट ऑप्शन इज एवरी ट्यूसडे, यानी एवरी प्रत्येक मंगलवार को। जैसे ऑप्शन डी अगर आप देखें 2nd and 4th सैटरडे, तो ये हमारा हो गया नो बैग डे, NBD। क्वेश्चन नंबर 21,
गार्गी मंच इज कंसर्न्ड विथ द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ विच स्टैंडर्ड्स, कि गार्गी मंच जो स्कूलों में बनाया गया है उसमें किस स्टैंडर्ड यानी किस क्लास तक के बच्चों को मतलब सम्मिलित किया गया है। तो क्या वो 1 से 12 तक के बच्चे हैं क्लास, क्या वो क्लास 6 से 8 तक के बच्चे हैं, क्या वो 9 से 12 तक के बच्चे हैं, या फिर वो 6 से 12 तक के बच्चे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लास 9 to 12। तो गार्गी मंच के अंतर्गत क्लास 9 to 12 के लड़कियों को, ओनली गर्ल स्टूडेंट्स को सम्मिलित किया जाता है। और 6 to 8 क्लास तक के लिए वो है मीना एंड राजू मंच, ये है 6 to 8 क्लास तक के बच्चों के लिए, इस बालिकाओं के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सो यू शुड रिमेंबर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चेयरपर्सन कौन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का? कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, ऑप्शन बी TR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी आचार्य रामामूर्ति, ऑप्शन डी दौलत सिंह कोठारी। तो करेक्ट ऑप्शन इज कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। अगर आप TR सुब्रमण्यम के बारे में देखेंगे तो इन्होंने ड्राफ्ट DRAFT ड्राफ्ट जो एजुकेशन पॉलिसी है जो 2000 कब आई थी 2016 में जो आई थी ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी, वो TR सुब्रमण्यम ने बनाई थी, वो उसके चेयरपर्सन थे। और आचार्य रामामूर्ति, इन्होंने NEP जो 1986 यानी हमारी सेकंड NEP थी उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे आचार्य रामामूर्ति। और दौलत सिंह कोठारी, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ NEP 1968, दैट वाज द फर्स्ट NEP, उसके जो चेयरपर्सन थे दौलत सिंह कोठारी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यू शुड रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन पर्पजेज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट्स इन स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स, कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स में कितने % स्थान है वो सुरक्षित रखे गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। तो क्या वो 50% है, क्या वो 55% है, या फिर 30% और 75%? तो करेक्ट ऑप्शन इज 55%। अगर आप 50% देखें तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, कौन से 3rd ग्रेड टीचर्स, उनमें महिलाओं को आरक्षण दिया है 50%। और 30% अगर आपको याद हो तो पहले एक राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसमें बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, उसमें अब उसका नाम कर दिया गया स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। उसमें 30% ही रिजर्व किए गए गर्ल्स के लिए, किसके, और 75% जो है आपको याद हो तो जो इसमें, चलो इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज द फर्स्ट स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ओपन्ड इन राजस्थान? तो जो फर्स्ट स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है वो कहाँ खोला गया राजस्थान में? तो क्या वो मानसरोवर जयपुर था, झालरापाटन झालावाड़ था, या ओसियां जोधपुर है, या फिर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ है? तो करेक्ट ऑप्शन इज झालरापाटन झालावाड़। क्वेश्चन अब उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन्ड इन राजस्थान? कि राजस्थान में कहाँ और कब पहला महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया? तो ऑप्शंस देखें, जोधपुर में 2019 में, झालरापाटन झालावाड़ 2019 में, या फिर मानसरोवर जयपुर 2019 में, या रावतसर हनुमानगढ़ 2019 में। करेक्ट ऑप्शन इज मानसरोवर जयपुर 2019 फर्स्ट MGGS है। क्या है? फर्स्ट MGGS स्कूल जो 2019 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड शारदा बालिका छात्रावास क्लब्ड यानी मिला दिए गए, एंड
मेड कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, क्योंकि ये दोनों पहले अलग अलग थे तो इनको कब मिला दिया गया? क्या वो 2018 में मिलाए गए या फिर 2019 या 2009 या फिर 2004? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2019। 2018 में SMSA 1.0 लॉन्च हुआ था और 1 अप्रैल 2018 से वो चालू हो गया। 2009 में RTE आया है। 2009-10 में RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया है। और 2004 में, क्योंकि ये जो शारदीय बालिका छात्रावास जो था वो RMSA के अंतर्गत 9 से 12 तक की बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए था। और 2004 में आपको याद होगा कि KGBV जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो कंसेप्ट है वो 2004 में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, विच कैटेगरी ऑफ RBSE गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इज बेनिफिशियरी, कि कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं वो लाभ प्राप्त वर्ग है, किसमें? RBSE के किस उसमें? ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th 12th रिजल्ट्स द टॉपर 1 फ्रॉम क्लास 10 12th ईच स्टूडेंट गेट ₹50,000 वन टाइम ग्रांट एंड एन एप्रिसिएशन लेटर, while other students जो 100 फ्रॉम क्लास 10 12 ईच गेट ₹15,000 वन टाइम ग्रांट अंडर चीफ मिनिस्टर शिक्षा अलंकार स्कीम। कि RBSE गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कौन सा वर्ग है जो लाभ प्राप्त करता वर्ग है, जिसके अंतर्गत कि जो 100 बच्चों को जो क्लास 10 और 12th में जो मेरिट में आते हैं या जो अपने वर्ग में प्रथम होते हैं उनको फर्स्ट को 50,000 रुपये और अदर जो 99 है उनको 15,000 रुपये वन टाइम ग्रांट दिए जाते हैं शिक्षा अलंकार स्कीम के तहत। तो क्या वो माइनॉरिटी उसके अंतर्गत है, SC ST उसके अंतर्गत है, OBC उसके अंतर्गत है, या फिर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके अंतर्गत है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी EWS यानी चीफ मिनिस्टर शिक्षा अलंकार स्कीम इज कंसर्न्ड विथ EWS ओनली। व्हाट इज सम इंश्योर्ड फॉर क्लास 1 to 12 स्टूडेंट्स अंडर स्टूडेंट सेफ्टी एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान? कि जो बच्चे 1 से 12 तक पढ़ते हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट सेफ्टी एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की एक स्कीम लेकर के आई है। उसके अंतर्गत बच्चों को जो 1 से 12 तक के बच्चे हैं अगर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको कितने रुपए मिल सकते हैं वो पूछा गया। तो ऑप्शन ए ₹50,000, ऑप्शन बी ₹1 लाख, ऑप्शन सी ₹2 लाख, ऑप्शन डी ₹5 लाख। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ₹1 लाख। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम? प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से पहले यानी पूर्व माध्यमिक स्कॉलरशिप स्कीम यानी छात्रवृत्ति स्कीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10 ऑफ SC ST बॉयज़ एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली। तो 6 से 10 के बच्चे को प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो SC ST के बॉयज़ एंड गर्ल्स को पहले बॉयज़ की अमाउंट बताएंगे और फिर गर्ल्स की दी जाती है। तो क्या अमाउंट है? क्या वो 750 एंड 1250 है, ये बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए? क्या वो 400 या 500 है? क्या वो 500 या 600 है, या नन ऑफ दिस, कोई भी इनमें सही नहीं है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 750 फॉर बॉयज़ पर ईयर एंड 1250 फॉर गर्ल्स पर ईयर। ये स्कॉलरशिप है पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति स्कीम है जो SC ST बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम? यानी जो 10वीं के बाद की जो स्कॉलरशिप उत्तर मैट्रिक जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके अंतर्गत फॉर स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल, उसमें मेल और फीमेल को एक साथ ही दी जाती है, एक ही अमाउंट है फॉर क्लास 11th एंड 12th ऑफ SC ST OBC कैटेगरीज। कि SC ST OBC कैटेगरीज के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कितनी दी जाती है? तो क्या वो 2300 पर ईयर है? क्या वो 1600 पर ईयर है? क्या वो 2100 पर ईयर है? या फिर वो
2400 पर ईयर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2300 रुपीज़ पर ईयर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत SC ST और SBC के बच्चों को दी जाती है। अंडर बालिका प्रोत्साहन स्कीम व्हाट इज द वन टाइम ग्रांट गिवन टू स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 75% एंड अबोव मार्क्स इन क्लास 12th। तो अंडर बालिका प्रोत्साहन स्कीम, कि बालिका प्रोत्साहन स्कीम जो है राजस्थान गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत वन टाइम ग्रांट दी जाती है उन बालिकाओं को जो उत्कृष्ट परिणाम देती है, यानी 75% प्लस अबोव मार्क्स लेके आती है क्लास 12 में। तो उनको क्या ग्रांट है वो हमें बताना है। तो क्या वो 3000 रुपीज़ है, क्या वो 5000 रुपीज़ है, क्या वो 15,000 है, क्या वो 1,15,000 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 5,000 रुपीज़। So this was the video series on MGGS examination 2024. I have already uploaded 3 videos, part 1, part 2 and part 3. I have tried my best to include all the important facts about this examination, राजस्थान गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल स्कीम्स। मेरे हिसाब से मैंने ये तीनों वीडियो लगभग 1.5 घंटे के आसपास के हैं, तो उसमें सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर दिया गया विथ अटमोस्ट एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा गया। सो इफ़ यू लाइक्ड ऑल दीज वीडियोज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thanks a lot.